شہر لاہور میں پھر سے سموگ کے ڈیرے، صوبائی دارالحکومت فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 308 ریکارڈ، عامر ٹاؤن کا AQI 356 اور مال روڈ کا 308 ریکارڈ کیا گیا۔ عدالت عالیہ نے ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا حکم دے رکھا ہے۔ سموگ کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو اس وقت چائنا چوک میں موجود ہیں۔ مبین، بتائیے۔ بالکل، اسموگ کی صورتحال اسی طرح سے ہے کہ لاہور دوبارہ سے دنیا میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آلودگی کے اعتبار سے، جو فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور جو ہے دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسموگ کی اگر بات کرتا چلوں تو AQI انڈیکس جو اوسط ریکارڈ کیا گیا ہے اسموگ کا، وہ 308 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسموگ کی بھی صورتحال اس طرح سے ہے کہ عدالت عالیہ نے بھی کہا ہے کہ کوشش کریں کہ 2 دن جو ہے ورک فرام ہوم کریں۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے ویسے بھی بڑے سخت اختیارات کا جو ہے وہ جاری کیا ہے، بڑے سخت آرڈر جاری کیے ہیں کہ اسموگ کے اوپر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا۔ ان کا عدالت کے سخت ریمارکس تھے کہ کیوں بار بار جو ہے چھٹیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اسموگ کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی پراپر تیار نہیں کی جا رہی۔ ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ قبل جو ہے بارش ہوئی تھی، تب اسموگ میں کافی حد تک بہتری آ چکی تھی، لیکن دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ اسموگ کی جو ہے صورتحال دوبارہ سے اسی طرح پہنچ چکی ہے، اسی کیلیبر پہ دوبارہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا صوبائی دارالحکومت ہے جو دوبارہ سے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر اسموگ کے حوالے سے۔ اب دیکھنے کی کیا صورتحال ہے کہ موسم کی بات کرتا چلوں تو موسم بھی آپ تو جانتے ہیں سردی کی طرف گامزن ہے۔ درجہ حرارت جو ہے اس وقت 14 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج کے روز میں 26 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم جو ہے وہ 13 سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ اسموگ کی وجہ سے جو ہے گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، اور ٹریول کرتے وقت خاص طور پر جو بائک پر ٹریول کرنے والے افراد ہیں کوشش کریں کہ چشمے کا استعمال یقینی بنائیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ طلبہ کے لیے بھی اسکولوں اور اداروں کے اندر جو ہے وہ ماسک کا استعمال یقینی بنا دیا گیا ہے۔ ہفتے کی چھٹی بھی تمام اسکولوں اور کالجوں میں اناؤنس کر دی گئی ہے کہ ہفتے کے روز بھی جو ہے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں بند رہیں گے تاکہ اسموگ سے کم لوگ جو ہیں اور شہری جو ہیں متاثر ہوں۔ جی مبین، یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے سپیل کی کوئی پیشن گوئی کی گئی ہے؟ بالکل، محکمہ موسمیات والوں نے بتایا ہے کہ آئندہ 7-8 روز تک بھی جو ہے بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ گزشتہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر یا آئندہ آنے والے پورے ہفتے کے اندر بھی بارش پڑنے کے کوئی امکانات نہیں۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ اسموگ کے اندر کسی صورت ابھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی، تو اس لیے کوشش کریں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں تاکہ اسموگ کے منفی اثرات جو ہیں ان سے وہ جو ہے بچے جا سکیں۔ مبین، سموگی وہیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں کیونکہ سموگی وہیکلز سموگ کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل اقدامات کیے جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس اس چیز پہ ہمیں کافی سرگرم نظر آتی ہیں۔ روز کی بنیاد پر جو ہے چلان کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اب تک جو ہے روز کی بنیاد پر گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں، چلان ٹیکس جاری کیے جا رہے ہیں، چلان ٹکٹس کاٹے جا رہے ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اسموکی وہیکلز جو ہیں، کیونکہ اسموگ کی ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے فیکٹریوں کے ساتھ ساتھ اسموکی وہیکلز ہوتی ہیں، کیونکہ دھواں دار جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اسموگ میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ٹریفک پولیس ہمیں اس چیز میں کافی سرگرم نظر آتی ہے، اور ٹریفک پولیس کے حوالے سے پوری کوشش ان کی یہ کی جا رہی ہے، اور پراپر جتنے بھی متعلقہ حکام ان کے بھی یہی آرڈرز ہیں کہ کوشش کی جائے کہ جتنی بھی اسموکی وہیکلز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی ٹالرنس پالیسی نہ اپنائی جائے۔ ٹھیک ہے مبین حیدر، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ، شہریوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل کا سامنا۔ 2 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں سموگ سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فضائی آلودگی کے مضر اثرات سے شہری بیمار ہونے لگے، ہسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ۔ 2 روز میں شہر کے 5 بڑے ہاسپٹلز میں اسموگ سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ۔ جناح ہاسپٹل میں 900، میو ہسپتال 850، جبکہ گنگا رام میں 700 مریض رپورٹ ہوئے۔ متعدد مریضوں نے سروسز اور جنرل ہسپتال کا بھی رخ کیا۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ اسموگ سے متاثرہ مریض پھر سے ہسپتال میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سانس کی بیماری میں مبتلا مریض گھروں سے باہر نہ جائیں، اسموگ سے جلدی امراض میں اضافہ اور آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ید اللہ نے مزید کہا کہ شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں، کم قوت مدافعت رکھنے والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں۔
यहाँ पर आपको बताएं, स्कूलों और कॉलेजेस में हफ्ते को छुट्टी होगी या नहीं, महकमा स्कूल एजुकेशन फैसला ना कर सकी। अदालती अहकाम के बावजूद छुट्टी के हवाले से गुम की सूरत हाल बरकरार है। स्मोक की वजह से हफ्ते के रोज़ स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि ताहाल अदालती अहकाम मौसूल नहीं हुए। छुट्टी का फैसला वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सस्ती प्रोटीन खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 484 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 10 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फरोख्त है। आपको आगाह कर रहे हैं, सस्ती प्रोटीन खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया है। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 484 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 10 रुपये किलो बढ़ चुके हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए रेट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर आज इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आज जो है वो कम हो रही थी, लेकिन आज सप्लाई मुतासर करके 14 रुपये फी किलो तक का ब्रायलर गोश्त महंगा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 470 रुपये फी किलो से महंगा करके 484 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर के दाम आज जो है वो 10 रुपए तक बढ़ाए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 334 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कीमतों में कमी 3 से 4 रुपए तक या 5 रुपए तक होती है, और जब इजाफा किया जाता है तो 10 से 14 और 20 रुपए तक का इजाफा किया जाता है। और अचानक इजाफे की समझ जो है अब वो किसी को नहीं आ रही, क्योंकि सप्लाई को जो है वो अचानक से मुतासर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रायलर जो है वो महंगा किया जाता है मार्केट में। इसी तरह अंडों की कीमतें 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9,750 रुपए की मुकर्रर की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज भी रहेगा। हर माह ताखीर मामूल बन गई। रेलवे के सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहें रवा माह भी ताखीर का शिकार हैं। दर्जा चहारम के मुतअद्दिद मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाह ताहाल न मिल सकी। तनख्वाहें बर वक्त अदा न करने पर रेलवे प्रेम यूनियन ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीज़न फ़याज़ अहमद शहजाद का कहना है कि तनख्वाहें बर वक्त न मिलने से माशी हालात अबतर हो चुके हैं। दर्जा चहारम मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बात करें महंगाई की, आपको बताएं सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अदरक 800, लहसुन 700, टमाटर 200, प्याज 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मटर 250, अरवी 160, शिमला मिर्च 140, भिंडी 100, आलू 140 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज जो सब्जियों की सरकारी रिपोर्ट जारी की गई उसके साथ सब्जियों में इजाफा किया गया। लहसुन चाइन आज गैर मामूली तौर पर 20 रुपया महंगा किया गया और 560 रुपया फी किलो सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 700 रुपया फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें जीरा 5 रुपया महंगा करके 77 रुपया मुकर्रर किया गया, लेकिन 100 रुपया फी किलो तक किया जा रहा है। करेले 2 रुपया इजाफे के बाद 70 रुपया मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 100 रुपया फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। 4 रुपया महंगा करके 36 रुपया मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 50 रुपया फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 3 रुपया महंगी करके 38 रुपया मुकर्रर की गई, लेकिन 38 के बरक 60 रुपया फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त जो है वो की जा रही है। शिमला मिर्च 5 रुपया महंगी करके 90 रुपया मुकर्रर की गई, फरोख्त 140 रुपया फी किलो तक। घिया तोरी 3 रुपया महंगी करके 68 रुपया फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 100 रुपया फी किलो तक घिया तोरी की फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू आज जो है 270 रुपया मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपया फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 160 रुपया, जबकि दर्जा दोम का केला 120 रुपया फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 950 और जापानी फल जो है 250 रुपया फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियों
सब्जियां और फल जो हैं सरकारी महकमों के बरक्स महंगे दामों फरोख्ती जा रही हैं और शहरियों का ये कहना है कि सब्जियों की खरीदारी जो है वो अब कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। ऐसा कहना है शहरियों को। अब्दुल कादिर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जीना मरना इस्लाम और उम्मत के लिए है। OIC ने मायूस किया, खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। राहील अली की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जामिया सिराजुल उलूम रहमानपुरा आमद तलबा ने सिराजुल हक का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलपाशी की। अमीर जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन हर मुसलमान का मसला है। 37 रोज़ में 11,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 37 दिनों में 11,000 से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई, हमारे माएँ बहनें और बेटियां और हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं। इसराइल ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम अमेरिका ने इस्तेमाल किया था उससे ज़्यादा बारूद इस्तेमाल की है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि OIC ने मायूस किया। उम्मीद थी कि इसराइल का इक्तसादी बाइकॉट या आलमी फ़लस्तीन फंड कायम करेंगे। OIC का इजलास हुआ मुसलमान हुक्मरानों का। हमारा यह ख्याल था कि इस इजलास में मुसलमान हुक्मरान गज़ा को बचाने के लिए कोई ऐलान करेंगे, दुश्मन को कोई सख्त पैगाम देंगे, कुछ नहीं तो उसका इक़्तिसादी बाइकाट करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे उन हुक्मरानों ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने खिताब के दौरान 19 नवंबर को गज़ा मार्च में शिरकत की दावत दी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ 19 नवंबर को जमात इस्लामी के गज़ा मार्च के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जमात इस्लामी के रहनुमा सलमान बलोच ने रहमानपुरा में कैंप का दौरा किया। शहर लाहौर में 300 से ज़ायद कैंप लगाए गए हैं। नवंबर एतवार के रोज़ दोपहर 12 बजे कैंपस पुल पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान गज़ा मार्च में शरीक होंगे। सलमान बलोच ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज़ा मार्च मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइली जाहिलियत के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। IG पंजाब की तमाम अफसरान को ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का पुरअमन इनखला हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। गैर कानूनी तारकीन वतन के पुरअमन इनखला का मामला 2 हफ्तों में पंजाब पुलिस सिर्फ 432 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट कर सकी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला बारे इजलास में CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम अफसरान को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की गई। IG पंजाब ने कहा कि तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का पुरअमन इनखला हर सूरत यकीनी बनाए। इनखला से बचने के लिए हर जिला से दूसरे जिला में हिजरत करके छुपने की कोशिश करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन पर गहरी नजर रखें। तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल को कामयाब बनाने के लिए ज़िलाई इंतजामिया मुतालिका इदारों के साथ मरबूत रवाबित रखें। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब से 11,000 गैर कानूनी तारकीन वतन रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तमाम RPOs, CPOs और DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को रॉयल पार्क सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2 होटलों से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। रॉयल पार्क के इलाके में 2 होटलों में बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने बिजली चोरी पर कनेक्शंस मुनक़ता करके मीटर और तारें भी कब्जे में ले लीं। एक होटल के मालिक को गिरफ्तार करवा दिया गया। एक्सियन अमजद का कहना था कि सहूलतकारी पर रॉयल पार्क सब डिवीजन के मीटर रीडर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। बिजली चोरी का तखमीना लगा डिडक्शन बिल चार्ज किए जाएंगे। पंजाब में 9 मॉडल ज़राई सेंटर्स के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। तारीखी हवेली खड़क सिंह के कमरों को भी बहाल किया जाएगा। देखते हैं लियाकत अली की ये रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का असूली फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आला ने ज़रई सेंटर्स का हतमी प्लान तलब कर लिया। ज़रई सेंटर्स में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक छत तले मैसर होंगी। किसानों को बीज, खाद, अद्वियात और आलात फराहम किए जाएंगे। इजला में भी मरहलावार मॉडल ज़रई सेंटर्स कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। तारीखी हवेली खड़क सिंह के कमरों को बहाल किया जाएगा। हवेली में सियाहों की रिहाइश के लिए मयारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी की रिम मार्केट की मुंतकली के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। लाहौर के तारीखी दरवाजों और किला कहना कासिम बाग मुल्तान की बहाली के प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर के दरवाजे और किला कहना कासिम बाग मुल्तान का तारीखी विरसा है, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इजलास में माल रोड की कदीमी हैयत की बहाली के लिए पोल हटाने का भी फैसला किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को बताया गया कि लाहौर के ब्रेडले हाल की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। बरकत अली इस्लामिया हाल की तारीखी हैसियत को असल हालत में लाया जा रहा है। बल्दिया उस्मान लाहौर का शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रेगुलेशन विंग ने शहर से 173 तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। इंसदाद तजावुज़ात पर 109 नोटिस और जुर्माने के चालान जारी किए गए। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद ने बताया, रेगुलेशन विंग ने शहर से 173 तजावुज़ात का खात्मा किया। इंसदाद तजावुज़ात पर 109 नोटिस और जुर्माने के चालान जारी किए। बैनर स्टीमर हटाने के साथ चील गोश्त के 6 पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। सर्विसेज विंग की जानिब से 310 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का काम किया गया। काबिल मरम्मत सड़कों पर 5251 स्क्वायर फीट पैच वर्क किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए 28 शाहराहों पर छिड़काव किया गया है। शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए LDA की अनोखी मंतक, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बजाय पुराने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद ट्रैफिक लोड डालना शुरू कर दिया गया। फिरोजपुर रोड से रायवन रोड तक की आबादियों के लिए नई सड़क की तामीर का मंसूबा बंद हो गया। शहर लाहौर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए LDA का नया फार्मूला सामने आ गया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बजाय पुराने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही मजीद ट्रैफिक लोड डालना शुरू कर दिया। गुज़श्ता बरसों में नए स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मंसूबों को ड्रॉप किया गया। पहले से मौजूद सड़कों पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने को तरजीह दी गई। फिरोजपुर रोड से रायवन रोड तक की आबादियों के लिए नई सड़क की तामीर का मंसूबा बंद हो गया। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड की फाइल बंद कर दी। लिंक कनेक्शन फिरोजपुर रोड से पाइन एवेन्यू मंसूबे को भी शुरू करने की इजाजत न मिल सकी। स्ट्रक्चर प्लान रोड फिरोजपुर रोड से पाइन एवेन्यू की अवामी सुनवाई भी 15 जुलाई को हो चुकी है। माहौलियात से NOC के हसूल के बाद मजीद कोई पेशरफ्त न हुई। सड़कों की तामीर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। ताहम अब मंसूबे रवा दौर में शुरू न होने से लागत में मजीद इजाफा होगा। मंसूबे से फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, टाउनशिप, मौलाना शौकत अली रोड और वाबडा टाउन की आबादियां मुस्तफीद होंगी। सदरन बाईपास, पाइन एवेन्यू और रायवन रोड की आबादियां भी इस्तेफादा कर सकेंगी। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर की 120 यूनियन काउंसिल्स में कंप्यूटर्स की अदम दस्तयाबी, पैदाइश, अमवात, निकाह समेत दीगर सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड ना हो सके। सर्टिफिकेट रुकने से बच्चों के बेफॉर्म इल्तवा का शिकार हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा बल्दियात पंजाब का नारा खिदमत आपकी दहलीज पर दम तोड़ने लगा। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 120 यूसीज ताहाल कंप्यूटराइज न हो सकी। मुसद्दिका कागज न होने से निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट 2 माह से इल्तवा का शिकार। 15,000 दरखास्तें अमल दरामद की मुंतजिर हैं। लाहौर की 120 यूनियन काउंसिल्स में कंप्यूटर मौजूद नहीं। 2 माह गुजर गए, सर्टिफिकेट नादरा पर ऑनलाइन न हो सके। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि टेक्निकल वजूहात की वजह से सर्टिफिकेट इजरा के मसाइल आ रहे हैं। जल्द शहरियों की शिकायत का अजाला होगा। आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी और नैब के ज़ेर एहतमाम इंसदादे बदउनवानी मुहिम के हवाले से वॉल ऑफ कल्चर पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। जैन अली की रिपोर्ट। इंसदाद बदउनवानी मुहिम पंजाब यूनिवर्सिटी और कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम वॉल ऑफ कल्चर पेंटिंग मुकाबलों का इनाकाद। मुकाबलों में पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने जामे पंजाब की बैरूनी दीवार पर पेंटिंग्स बनाई। पेंटिंग्स मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा तालिबात ने कहा कि एंटी करप्शन के हवाले से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ऐसे मुकाबलों का एहतमाम तसलसल के साथ होना चाहिए। ऐसे इवेंट्स से तलबा का जज्बा भी बेदार होता है। ऑन द अदर हैंड हमने यहाँ पे एक लोगो बनाया जो कह रहा है कि से नो टू करप्शन। मोर ओवर वी हैव मेड सम बिल्डिंग्स। हमने रेड कलर यूज़ किया है जो कि करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और काफ़ी सिंबलिज्म यूज़ हुआ है पेंटिंग में। और बहुत अच्छा है कि हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि हम अपना आर्ट को
ایک میسیج ڈلیور کرنے کے لیے یوز کر سکیں. اینٹائی کرپشن پہ، اور ہم شو کریں کہ جس طرح کے انسان کے اندر کرپشن ہوتی ہے اور جو لیڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کس طرح کرپشن شو کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. بہترین پینٹنگز بنانے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. ذیابیطس سے بچاؤ کے عالمی دن پر گورنر ہاؤس میں آگاہی تقریب کا اہتمام کیا گیا. الحمرہ سے گورنر ہاؤس تک واک بھی کی گئی. گورنر پنجاب ملک الرحمان نے کہا کہ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے، بہتر طرز زندگی اپنانا ہوگی. زاہد عابد کی رپورٹ. ذیابیطس سے بچاؤ کا عالمی دن. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے گورنر ہاؤس میں آگاہی تقریب کا اہتمام کیا. میڈیکل کیمپ لگا کر لوگوں کو شوگر ٹیسٹ کی سہولت دی گئی. الحمرہ ہال سے گورنر ہاؤس تک واک بھی کی گئی جس میں گورنر پنجاب، طبی ماہرین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. واک کا مقصد شوگر کے مریضوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینا تھا. گورنر پنجاب ملک الرحمان نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1/3 آبادی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. پنجاب حکومت سے کہوں گا کہ شوگر سے بچاؤ بارے آگاہی مہم چلائی جائے. ہمارا دین بھی اس بات کی بہت تاکید کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص جس میں ذرا بھی عقل شعور ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خرابیوں سے بچائے. اویئرنیس سب سے پہلے پھیلانے کی ضرورت ہے. اٹس این ایج اولڈ حکمت کی بات ہے پرانی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پرہیز علاج سے بہتر ہے. نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر ذیابیطس کا گڑھ بن رہا ہے. صرف فطرت کے قریب زندگی گزار کر آسانی سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. پاکستان کو ایک خطاب دیا گیا ہے جس کا ہم فخر نہیں کر سکتے، جس کا ہم دنیا سے شرمندہ ہو سکتے ہیں. پاکستان کو کہا جا رہا ہے سر کہ دار الخلافہ ہے ڈائبٹیز کا ورلڈ اوور، ورلڈ کیپٹل آف ڈائبٹیز، کیونکہ جس قدر تیزی سے یہاں شوگر بڑھ رہی ہے کسی دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. طبی ماہرین اس امر پر متفق ہے کہ روزانہ صرف 30 منٹ کی واک اور سادہ غذا کے استعمال سے شوگر جیسے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے، ورنہ مزید پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں خام مال کی درآمد سے متعلق مسائل بڑھنے لگے. لاہور چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فرنیچر افیئرز کا تحفظات کا اظہار. کنوینر کمیٹی میاں فرید رضا نے کہا کہ حکومت خام مال اور LCs کے معاملات بہتر کرے تاکہ پاکستانی فرنیچر کی برآمد سے زر مبادلہ کمایا جا سکے. عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے. خام مال کی درآمد سے متعلق مسائل بڑھنے لگے. بینکوں کی جانب سے LCs کھولنے میں تاخیر مینوفیکچررز کے لیے درد سر بن گئی. لاہور چیمبر آف کامرس میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فرنیچر افیئرز کا اجلاس ہوا. کنوینر کمیٹی میاں فریاد رضا نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں فرنیچر کی صنعت سے وابستہ افراد نے درآمدات اور LCs کے مسائل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. کنوینر اسٹینڈنگ کمیٹی میاں فریاد رضا نے کہا کہ مقامی سطح پر فرنیچر مینوفیکچررز مسائل کا شکار ہیں. خام مال کی دستیابی کے بغیر کاروبار ناممکن ہے. جتنے بھی فیمس برانڈ ہیں ان کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں اور وہ سب اسی بات پہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ ہم جب را مٹیریل بائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. ہماری LCs نہیں اوپن ہو رہی ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ بینک ڈاکومنٹس نہیں کلیئر کر رہے. اس طرح کے مسائل ہیں. کو کنوینر اسٹینڈنگ کمیٹی عمران بٹ نے بتایا کہ خام مال کی درآمد کے مسائل سے فرنیچر سیکٹر متاثر ہو رہا ہے. بورڈ کے جو پرابلمز ہیں اس میں ہماری ہیلپ کی جائے تاکہ ہم کم از کم مینوفیکچرنگ تو کریں. اس کے لیے ہمیں را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، اس پہ پلیز ہماری ہیلپ کیجیے، ہمیں آسانیاں فراہم کیجیے اس میں تاجروں کو، تاکہ جو را مٹیریل ہم منگوائیں اور لوکل مینوفیکچرنگ کریں گے تو پھر اس میں ہم ایکسپورٹ بھی انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمیں تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں، پرابلمز کم ہوں گی انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ زیادہ کریں گے انشاءاللہ. چیئرمین فرنیچر ایسوسی ایشن امجد فاروقی، امجد بیگ، سید عمران شاہ، محمد عثمان، عاصم بٹ اور عامر انصاری سمیت مختلف کمپنیوں اور برانڈز کے نمائندگان نے LCs کھولنے میں تاخیر پر حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. بات کر رہے ہیں عوامی مسائل کی تو آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹور سے عوام سستی اشیاء کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگے. شالیمار میں خواتین آٹے اور گھی کے لیے سٹورز کے باہر قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں. سارا دن انتظار کے بعد بھی یقینی نہیں ہوتا کہ آٹا گھی ملے گا یا نہیں. زاہد عابد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. شہر کے سستے یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کو مہنگے پڑنے لگے. کبھی چینی تو کبھی گھی کی سپلائی متاثر. متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور مختلف دالوں کی قلت بڑھنے لگی. دال چنا، دال مسور اور کالے چنے سپلائی نہ ہونے سے سٹور سے غائب. شہری گھر کے راشن کے لیے بار بار چکر لگانے پر مجبور. یوٹیلیٹی سٹور پر آئے خریداروں کا کہنا ہے کہ کبھی گھی چینی نہیں ملتی تو کبھی آٹا موجود نہیں ہوتا. شہر کے پرچون بازاروں میں آٹے کے دام بڑھنے سے یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائز آٹے کی قلت غریب کے لیے مزید اذیت کا باعث بننے لگی. کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز.
दूसरी जानिब काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद महकमे खुराक पंजाब ने गंदम और आटे के नए रेट मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आटे की कीमत में 75 रुपये फ़ी किलो का होशरुबा इजाफा कर दिया गया और कीमत 65 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गंदम के आटे की कहानी वही पुरानी, निर्ख बढ़ाकर मकीनों की जेबों पर सरकारी डाका डालने का पुराना फार्मूला लगा दिया गया। लाहौर समेत सूबा भर में गंदम आटा महंगा करके बड़ा महंगाई बम गिरा दिया गया। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की फी मन रेट 4700 रुपये मुकर्रर, 10 किलो आटे का थैला एक्समेल रेट 1374 रुपये जबकि परचून रेट 1399 रुपये मुकर्रर। आटे की फी किलो कीमत भी 140 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इस जमन में अगर 2022 में कीमत का जायजा लिया जाए तो फी किलो आटे की कीमतों में 75 रुपये का होशरुबा इजाफा किया गया है, क्योंकि 2022 में फी मन गंदम का रेट 2300 रुपये था। 2022 में 10 किलो आटा एक्समेल रेट 635 रुपये जबकि परचून 650 रुपये था। 2022 में फी किलो आटा 65 रुपये में दस्तयाब था। इस तनाजुर में आटे की फी किलो कीमत में सरकारी सतह पर 75 रुपये का इजाफा किया गया है। ओपन मार्केट में शहरी फी किलो आटा 140 रुपये में खरीदेंगे। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने गंदम और आटा थैला कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को अफसरान बिजली चोरी पकड़ने और रिकवरी मुहिम में मसरूफ सार्फिन खबार हो गए। नए कनेक्शन खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए शहरी दफातर के बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को इंतजामिया ने सार्फिन की सहूलियत को पसे पुश डाल दिया। लेस्को अफसरान बिजली चोरी पकड़ने और रिकवरी मुहिम में मसरूफ जबकि सार्फिन खवार हो गए। नए कनेक्शंस और खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। लेस्को फील्ड अफसरान ने सार्फिन की बात सुनना ही छोड़ दी। लेस्को के कस्टमर सर्विसेज सेंटर से भी स्टाफ गायब नजर आता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना है कि अवामी सहूलियात अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए इकदाम भी कर रहे हैं। बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में मसरूफियत की वजह से कुछ अरसा सार्फिन को मसाइल पेश आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की जानिब से अब दोबारा कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स को एक्टिव किया जा रहा है। हमने जो कॉल सेंटर हैं और पब्लिक कंप्लेंट सेंटर्स को भी दोबारा एक्टिव कर दिया है और वो बड़ी तनदही के साथ बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब जिसको भी अब बिल्स के ऊपर भी हम कंप्लेंट सेंटर के जो टेलीफोन नंबर हैं हम वो प्रिंट करवा रहे हैं। और अब दूसरी बात है कि जो कनेक्शंस से जो नए कनेक्शंस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो डिफेक्टिव मीटर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट है, इसको भी हमने फैसला कर लिया है कि दिसंबर के एंड तक इसको हमने ज़ीरो करना है। हाफिज मियां नुमान का कहना था कि सार्फिन की शिकायत के बर वक्त अजाला के लिए बिजली के बिलों से एक्सीएन और एसडीओस के नंबर खत्म करके कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स के नंबर प्रिंट किए जा रहे हैं।